علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ جل جلال و منوال کا بے انتہا فضل و کرم احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، شکر ہے، فضل ہے کہ آج مدرسے گلشن مصطفیٰ گاگلا پور چچ گاگلا پور میں الحمدللہ جو ہے مشینز، خواتین کے لیے مشینز اور ہمارے بھائی کے لیے ٹھیلا بھنڈی کا جو الحمدللہ انتظام کیے ہیں، میں تہ دل سے جو ہے مشکور ہوں۔ ہمارے سید حامد صاحب کو اللہ صحت عطا فرما، عمر میں روزی میں برکت عطا فرما۔ جو آپ نے یہ کام شروع کیا، اللہ شروع سے آپ الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں گاگلا پور میں، چرچ گاگلا پور یعنی قطب اللہ پور میں آپ نے اللہ تعالیٰ ان کے کام کو کامیاب فرما، اور سید حامد صاحب کی زیر سرپرستی ہے الحمدللہ۔ عزیزان محترم، دراصل یہ خواتین کے لیے مشین دینا اور تھیلا بنڈی دینا، جس سے ہمارے بھائیوں کا بہنوں کا روزگار ہوتا ہے، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی ثواب جاریہ ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد 3 ثواب جاری رہتے ہیں۔ ایک ثواب وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ دوسرا ثواب جاریہ مزید مدرسہ یا مشین یا ٹھیلا بنڈی دینا یا کسی کو قرض حسنہ کے طور پہ دینا، یہ تمام چیزیں ثواب جاریہ ہے۔ اور تیسرا وہ کام جو ہماری نیک اولاد دعائے مغفرت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ دعائے مغفرت کو بے انتہا قبول فرماتے ہیں۔ ہم جو ثواب جاریہ کے کام کر رہے ہیں، ہمارے جانے کے بعد قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے پہاڑوں کے معنی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہم نے دنیا میں کہتے ہیں کہ مالک مولا، ہم نے دنیا میں اتنے بڑے بڑے اعمال نہیں کیے، اللہ جل جلال و منوال کا یہ جواب ہوتا ہے، اے میرے بندے، تو نے دنیا میں جو اعمال کیا یہ ثواب جاریہ کا کام ہے، اور یہ ثواب ہمیشہ ثواب جاریہ کا کام ہوتا ہے۔ جتنے لوگ اس میں تعاون کر رہے ہیں، جتنے لوگ اس میں حاضر ہوئے ہیں، جتنے ہمارے بھائیاں بہنوں کو، ہندو مسلمان سکھ عیسائی تمام کو گنگا جمنا تہذیب کو برقرار کرتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کام کو بے انتہا قبول فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، ضرورت اس بات کی ہے، آج کے ہمارے معاشرے کے اندر، آج کے دور کے اندر ہر محلے میں، ہر بستی میں ایسا کام ہونا ہے، اور ہمارے محلے والوں کی ذمہ داری ہے، بستی والوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے محلے میں کون غریب لوگ ہیں، ہمارے محلے میں کون بیوہ لوگ ہیں، ہمارے محلے میں کون پریشان لوگ ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ کام کریں۔ جیسا کہ اب ہم جانتے ہیں کہ جامعہ میراث الانبیاء روڑا میں سری نگر حاجی علی مسجد کے سامنے ہمارا دینی مدرسہ چلتا ہے، جہاں پہ الحمدللہ ہم تمام لوگ مل کر جو ہے لیڈیز ٹیلرنگ سینٹر کا انتظام کیے ہیں۔ 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک انتظام ہے۔ میں تمام خواتین، ہندو مسلمان سکھ عیسائی تمام میرے ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی فیس نہیں ہے، نہ ہم کسی سے کوئی پیسے لے رہے ہیں، بلکہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا آپ تمام کی سرپرستی میں اور حامد صاحب کی سرپرستی میں شعبان کے مہینے میں تمام عورتوں کو، خواتین کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ وہ سرٹیفکیٹ کی وجہ سے ان کو جو ہے روزگار ملے گا، کمپنیوں میں روزگار ملے گا، اور آج کے دور میں بہت ضروری ہے، جیسا کہ علم ضروری ہے اسی طریقے سے ہنر بھی ضروری ہے۔ عزیزان محترم، یہ کام بڑا خوش نصیبی کا کام ہے۔ اگر کسی ایک کی بیوہ کی، کسی ایک خواتین کی دعا لگ جائے، کسی میرے غریب بھائی کی ٹھیلا بنڈی دکلتے ہوئے اگر انہیں دعا کرا، اللہ تبارک و تعالیٰ ساروں کی مغفرت کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کام ہم سے لے رہا ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، اس قابل ہم بالکل نہیں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، یہ کام اللہ تعالیٰ ہم سے لے رہا ہے۔ میرے بھائی، ایسے کاموں میں آپ حصہ لیجئے، ایسے کاموں میں آپ حصہ لیجئے۔ دنیا میں نقطہ چینی، شکایتیں، غیبتیں ہوتے ہیں، ہم کو کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے۔ ہم کو اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے اخلاص کی بنیاد کے لیے، اللہ کے رضا کی بنیاد کے لیے ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ میں سید حامد صاحب کا، میں تمام بھائیوں کا، میرے نامہ تو یاد نہیں ہے، تمام کا مشکور ہوں، اور مجھے معلوم ہوا کہ سید حامد صاحب الحمدللہ یہ کام کا افتتاح کیے ہیں آپ، الحمدللہ اللہ نے چاہا تو اور زیادہ اللہ ان سے کام لے گا، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ کام زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں۔ اور میں بار بار آپ کو یہ اعلان کر رہا ہوں کہ روڑا میں سری نگر حاجی علی مسجد کے سامنے غوث پاک کا چلہ ہے، چلے کے سامنے لیڈیز ٹیلرنگ سینٹر چل رہا ہے۔ میرے بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بس فری ہے،
और मैं दूसरी बात हमारे राहत साहब से भी गुजारिश करता हूँ, यहाँ पे भी आप एक सेंटर डालिए, और जहाँ जहाँ पे आप जो डबल बेडरूम के पास आप मशीना दे रहे हैं, मेरी आपसे ये गुजारिश है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वहां पे भी आप सेंटर डालिए। मेरे पास इस वक्त 100 बच्चियां खवातीन जो है लेडीज टेलरिंग सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुके हैं। जिसको सेंटर के सिखाने के लिए ज़रूरत है हमसे रब्त पैदा करे। और दूसरी बात यह है कि अजीज़ान मोहतरम, ये जो काम हो रहा है हमें चाहिए कि हम और आप दिल खोल कर इसका काम करें, और हमारे सैयद हामिद साहब को और जितने भी हमारे भाई यहाँ पे हैं तमाम के लिए दुआ करें, और अल्लाह ताला ये काम करते रहे। और अल्लाह तबारक व तआला जब बंदे मुमिन नेक काम करता है, अल्लाह उस काम को अल्लाह कबूल फरमाते हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, बल्कि थोड़ी सी बात अर्ज करते हुए मैं जो है अपनी बात को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि हम और बखूबी जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है मिशन्स ख़वातीन के लिए और ठेला बंडी जो दे रहे हैं हमारे मर्द हजरात के लिए, और उनसे गुजारिश है कि दोबारा जब भी हमारे काउंसलर साहब सुधाकर रेड्डी साहब और जितने भी हाजिरीन हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िया मिल्लत ख़ाज़ी ज़ियाउद्दीन साहब मायदनी मरहूम जिसका इंतकाल हुआ, वो सरपरस्त थे। हज़रत ज़िंदगी में मुझे बोले ख़ाज़ी अब्दुल रशीद सूफ़ी को जो है आप जो है ख़ाज़ी अब्दुल रशीद सूफ़ी को इस ओहदा दिया जाए। बहरहाल मैं आप तमाम हज़रात का मशकूर और ममनू हूँ, मुझे भी इस छोटा मोटा ओहदा दिया गया है। अल्लाह इस ओहदे को कबूल फरमाए। और मेरा भी इस्लामिक यूट्यूब चैनल है ख़ाज़ी अब्दुल रशीद सूफ़ी, आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें दीनी बयानात आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ख़वातीन के बयानात, और जो है अगर मियाँ बीवी झगड़ा करे तो क्या पढ़ना है, सवारी की दुआ, ऐसे दीनी बयानात है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। और हमारे माँ बहनों से मेरी अदबन गुजारिश है कि आप भी जो है नमाज की पाबंदी कीजिए, और ये कोशिश कीजिए कि हम सीखेंगे, गरीबों को सिखाएंगे। हम हर एक ये नीयत रहेगी, अल्लाह पाक इसके नीयत का अजर अता फरमाएगा। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि मैं भी, अल्लाह ने मुझे भी चाहा तो मैं भी मशीन ठेला बंडी दूंगा, अगर आप नीयत कर लिए तो आपको सवाब मिल गया। अगर मेरे को अल्लाह ताला पैसे दिया तो मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए पैसे दूंगा, आप नीयत किए तो अल्लाह नीयत का सवाब मिल गया। जब आप वो काम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला डबल सवाब मिल जाएगा। इसीलिए नेक काम का नियत करते रहे। आप ये ना समझे भाई हम गरीब, हम क्या कर सकते हैं, मत समझिए। बस सारे जहान को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है, गरीबों को, अमीरों को, सबको अल्लाह ने पैदा फरमाया है। जब बंदे मोमिन जब ऐसे काम करते हैं, अल्लाह ऐसे काम को बेइंतहा खुश होता है। मैं आखिर में यही बात करता हूँ कि सैयद हामिद साहब, हमारे काउंसलर साहब, जितने भी हाजिरीन हैं, मोहम्मद अली साहब, हमारे सैयद समीउद्दीन हाशमी साहब, मोहम्मद राहत अली साहब, मीडिया तमाम का मशकूर ममनू हूँ जो मैंने चंद बातें आपके सामने रखा है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस काम को अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमा, अपने इखलास की बुनियाद पर जो काम कर रहे हैं अल्लाह कबूल फरमा। और जितने ख़वातीन हैं, जितने मर्द हजरात हैं, जो भी काम में मसरूफ़ हैं, कोशिश कर रहे हैं, फ़िक्र कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी फ़िक्र को अल्लाह कामयाब फरमा। और जितने भी हाजिर हैं सबके जायज़ मकासद कामयाबी कामना अता फरमा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गंगा जमुना तहज़ीब को बरकरार करते हुए आपस में हम सबको मोहब्बत से रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जिस तरीके से हमारा हिंदुस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, जहाँ पे हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे मज़ाहिब के लोग रहते हैं, और हमें चाहिए कि मिलजुल के रहना चाहिए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आज की इस कार्रवाई को, आज की जो कोशिश है सिलाई मशीन को, ठेला बंडी को जो कर रहे हैं, परवरदिगार सबके जायज़ मकसद में कामयाबी कामयाबी अता फरमा। जितने भी हाज़िरीन हैं सबके मकसद में कामयाबी अता फरमा। बिल्कुल सैयद हामिद साहब की जो कोशिश है, अल्लाह इनकी कोशिश को कामयाब फरमा। ए अल्लाह, हमारी टूटी पूरी दुआओं को मैं अपने फलो करम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तोफ़ा में कबूल व मक़बूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। చర్చికి ఆగిలో పులోని రాజీవ్ గాంధీ నగర్లో అందరు వచ్చి పెద్ద ఎత్తున ప్రోగ్రాం చేశారు. చాలా పేదవారికి మన సయ్యద్ హమీద్ గారు మిషన్లోను తోపుడు బండ్లు పేదవారి కోసం అందరికీ డొనేట్ చేసినారు. వాళ్ళు ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు చాలా చేస్తున్నారని ఉన్నాము. ఇక్కడ ఉన్న రా తల్లి, ఇక్కడ మదర్సా తరఫున ఉన్న రా తల్లి సయ్యద్ గారిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఉన్న బస్తీలో ఉన్న పేద ప్రజల కోసం వారు కూడా ఏదో సహాయంగా అభివృద్ధి చెందాలని చెప్పేసి వారికి మిషన్లోను తోపుడు బండ్లు ఏదో ఒక వ్యాపారంలో వాళ్ళు కూడా అభివృద్ధి చెందాలని చెప్పేసి సయ్యద్ హమీద్ గారు ఇచ్చే చాలామందికి మిషన్లోను తోపుడు బండ్లు అందజేశారు.
సార్ గారు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా ఎన్నో చేసి రాజీవ్ గాంధీ నగర్లో కూడా చాలా మంది పేదవారు ఉన్నారు. వారికి కూడా ఏదో రకంగా మీరు సహాయపడాలని మనస్ఫూర్తిగా సయ్యద్ హమీద్ గారిని కోరుచున్నాను. అదే రాహత్ గారిని కూడా ఏమంటున్నామంటే ఇంకా వేరే వారి ద్వారా కూడా ఈ పేద బస్తీల ప్రజలందరికీ ఏదో రకంగా సాయం చేస్తూ మీ మదర్సా తరపున వాళ్ళందరినీ అభివృద్ధి చెందే విధంగా, అదేవిధంగా ఆర్థికంగా వారికి మనం ఏదో చిన్న సాయం చేయాలని చెప్పేసి కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుచున్నాను. ఇక్కడ విచ్చేసిన పెద్ద మనుషులు అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోర్చి ఇలాంటి సహాయ సహకారాలు చాలా చేయాలని మదర్సా తరపున వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मदरसे गुलशन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चर्च गागिलापुर में एक प्रोग्राम किया गया, जो हमारे सैयद हामिद साहब की सरपरस्ती में और यहाँ के काउंसलर हिंदू मुसलमान तमाम लोगों की मौजूदगी में एक प्रोग्राम किया गया, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम मज़ाहिब वालों को 8 मशीना और 4 थैला बंडिया दिया गया है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, फजल है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गंगा जमुना तहजीब को बरकरार करते हुए हिंदू भाइयों को भी मुसलमान बहनों को भी मशीनें दी गई, थैला बंडी दिया गया। मैं तहे दिल से हमारे सैयद हामिद साहब का मशकूर और ममनू हूँ, और हमारे राहत अली साहब और हमारे एरिया के काउंसलर साहब, हमारे सैयद समीउद्दीन हाशमी रुबा साहब, तमाम सदर काजी मोहम्मद अब्दुल्ला निज़ामी सूफ़ी, जो काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने जो काम ले रहा है, ये बहुत बड़ा करम है, फजल है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ऐसे मुबारक मौके पर जहाँ पर ठेला बंडी और ख़वातीन के लिए सिलाई मशीन दी जा रही है, बेहतरीन काम हो रहा है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस काम को हम तमाम को कबूल फरमा, इसके एवज़ में अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत बरकत अता फरमा, और बिलखुसूस हमारी मग़फ़िरत और बख्शिश अता फरमा, और बिलखुसूस सैयद हामिद साहब को अल्लाह इनके कारोबार में, उम्र में, रोज़ी में बरकत अता फरमा, तमाम मुश्किलों को आसान फरमा, वलियात व आफ़ियत दूर फरमा। ए अल्लाह, मैं टूटी फूटी दुआओं को मैं अपने फलो करम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तफ़ कबूल व मक़बूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बरोज इतवार 8 दिसंबर 2024 यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया है मदरसे गुलशन मुस्तफ़ा के पास। गरीब लोगों को ठेला बंडी और सेविंग मशीन, कपड़े सीने की मशीन दिया गया है। हमारे सैयद हामिद साहब की ज़ेर सरपरस्ती और हमारे सैयद राहत अली माइनॉरिटी प्रेसिडेंट गागिलापुर राजीव गांधी नगर की ज़ेर निगरानी में मेहमान खुसूसी हमारे काउंसलर सुधाकर साहब और हमारे काजी साहब मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब, मेडचल डिस्ट्रिक्ट के चीफ काजी मोहम्मद अब्दुल्ला सूफी निज़ामी के निगरानी में, और हमारे इनका बहुत बड़ा हाथ है हमारे शब्बीर भाई और हमारे मोहसिन भाई का, इसके पीछे इनकी निगरानी कार फरमा है। अल्लाह जो सो इनकी मेहनत को रायगा ना करते हुए इनकी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।